हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, इमरजेंस ऑफ द रीजनल स्टेट इन इंडिया 12th टू द 18th सेंचुरी। यानी देखा जाए तो 11वां चैप्टर जो है भारत में प्रादेशिक राज्य का उदय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो एनआईएस में पढ़ते हों, चाहे सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो, उनके लिए भी ये चैप्टर कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें जो है हम 12वीं सेंचुरी से लेके जो है 18th सेंचुरी के विषय में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी हैव अ डिस्कशन ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट topic here, the understanding of the term regional state and regionalism. But their chapter has the most important emergence of the regional state in India 12th to the 18th century. There is a most important chapter. There is a first point here, the understanding of the term is regional state and the regionalism. In the history of India, there has been to the constant of evolution and development of the regionalism and regional state. How does one example the rise of the regional state? From the 7th century, there idea on board which is earlier is a medieval period until a 17th and 18th century. Agriculture and his activity as play a very significant role in the development of regional state. Wherever good agricultural activity took place, it is not only feed the population but generated the large surplus that is could be a sold and wealth could be generated. The trade and trading activity is over land as well as the maritime, and also provide an important source of the revenue. One find the rise of the powerful section in society that controlled the agricultural is surplus, and sometimes some member of this powerful section are isolated of himself and acquired to the political power and become a king and established to the ruling dynastics. That is the most important here. This led to the laying of the foundation of the state. Sometimes some groups come from to the outside and conquered there is land, controlled the administration and become a powerful. It is true that the large number of regional states after the 13th century arose due to the internal weakness of the Delhi Sultan. Similarly, with the decline of the Mughal Empire, and there emerged an important state in the 18th century. But all these states had a regional history that predated both the sultans and the Mughal state. And for example, Bengal was an important regional kingdoms in the 18th and 19th century under the Palas, as a sequentially in the 12th century under the Senas. It was an important independent state in the 13th and 15th century and become a powerful provisional kingdoms in the 18th century too. We all know that is the Delhi Sultans and the Mughal Empire ruled over to the numerous and different cultural zone. Even the regional state of Vijayanagar ruled over to different culture zone. Therefore, it should be remembered that regionalism
never to disappear through the regional densities is again land and loss of power and regional change. There is a geographically boundaries. What is this is regionalism? Apart from politically features like regional rulings or densities, and there are some important characteristics of regionalism which involved and the change over a period of time in this regional state. Some of the characteristics of the regionalism are flowing. There is the most important here. Some of characteristics of regionalism are flowing. The first characteristics of realism they are most important here. The one important accept to the language. For example, Oriya, Gujarati, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada as a Marathis, and so on the Indian language spoken in a various regions of India are referred as regional language, and these languages are developed in the earlier medieval period and were to associated with the specific regions. Though their language exists in the some from other, even prior to this is but it was the primarily from to 11th and 12th century that the regional language come to use in the officially documents. The laborers' work and the local literature come to be written in these languages. And in this medieval period, stimulations with their use of the regional language. The Sanskrit is also come to be used in the scholastic text. However, a large number of officially document of the Delhi Sultans and the Mughal Empire and some regional states were written in the Persian. There is the most important characteristics here. And next here, characteristics here, another characteristic is the presence of the local, regional, cults and religious is affiliations. For instance, the cult of the Jagannath in Orissa was regional to the Orissa and it became their cult of the state wherever by the rulers adopted it, built a temple for it and celebrated festivals. Around it is the every years. Historians say that a Jagannath was a travel god and was the popularities made to the rulers adopted this as the state cult. And the next section we feel further elaborate about the relationship between their state and religions. A large number of sects and the Bhakti religious development in their region. For example, Namadevs, Raidas, Turkaram, Guru Nanak, where is locality in the regional state. Original regionalisms also have there is a oven maths, alleging their interpretations and religious practice. Did you know that in the North India, Kartikeya, the son of the Shiva and Parvati, is the bachelor, and in the Tamil region has two wives. There is a imagine Devanya and the Valli. These regions have a different god and goddess, different temple and mosques and the architectures. And essentially to depends there is a regional is a difference, where each tradition was specific to the regions, and there was a similarity in the regional traditional too. The Sant and perished as a migrate from one region to another. For instance, to the Jesu and Dharas is a 1321 to 1422. The Sufi Sant belong to the is a Chisti Silsila that is established in their Delhi. He is a migrate from Delhi to the Daulatbad in the Deccan region in the child in 1328. 7 years later, in 1335 AD, he became back to Delhi and stay there to 63 years. That is the most important period of time, 63 years. And toward there is the end of the 14th century in 1398, when the Timur or Turkish invaded to the from Central Asia, attacked to Delhi. Jisudharas is a migrate back to the Deccan. And third character is the most important here. The regional state were not a close isolated area. There is the most important here. Apart from religious is the interaction between the state. And there were a network of interaction through the trade and commerce and migration of the artisan from one region to another. For example, in the 15th century, the silk weavers is a Pathanulkars is a migrate from Gujarat rails to the Vijayanagar state. And also one find
is a migrate of the Afghanistan and the Iranians to be Vijayanagar and is a Bahmani kingdoms. That is the most important here. And the fourth important also here point another characteristics in the development of local and regional art schools like that Bihar, Bengal, Assam, Central India and Rajasthan and so on. Regional identities were formed to the result of process and there has been to the changes and they did not exist in the same time or memorials and their various regional identities as a extending there is a patterns to be art, culture, literature and architecture. Thus, the presence of numerous regional states did not imply to the choice and confession. This state did a various war amongst to the themselves, but provided to the stability over their is respective regional. As discussed above, they had to the vibrant in the culture of their own. The regional state influenced each other in the area of the architectures and the political culture. For instance, the earlier Vijayanagar ruler is called himself in the Hindu is a Suratrana, and the meaning of is a Hindu Sultan. Whereas the term Sultan was borrowed from to Delhi Sultanate as a similarity. Iqtidari system of the Delhi Sultan influence of administrative system of the Vijayanagar and Brahmani's kingdom. What is the difference between two regional state and empire like a Delhi Sultan and the Mughal Empire? Apart from there is their characteristics as I mentioned above the language and the culture that were specific to one area. The political and military vision of this state were limited by the regional boundaries. यहाँ पर जैसे कि हमने आज करना है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत में प्रादेशिक राज्य का किस प्रकार उदय हुआ। इसी के अंतर्गत हमारे समक्ष जो आया है महत्वपूर्ण टॉपिक प्रादेशिक राज्य और प्रादेशिकता शब्दों को समझना। देखिए प्रादेशिक राज्य और प्रादेशिकता को समझना कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आपको ये समझ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रादेशिक राज्य क्या होते हैं और प्रादेशिकता से आप क्या समझते हो। तो इसके लिए आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर के साथ बने रहें। देखते हैं यहाँ पर प्रादेशिक और राज्य और प्रादेशिकता में क्या अंतर यहाँ दिखाया गया है। देखा जाए तो पहले पॉइंट के अंतर्गत हम प्रादेशिक और देशिक राज्य की बात करें तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के इतिहास में प्रादेशिकता और प्रादेशिक राज्य का लगातार उद्भव और विकास होता ही रहा है। प्रादेशिक राज्य के जो है उदय की व्याख्या कैसे की जाएगी, ठीक है, 7वीं सदी ईस्वी से लेकर इसके जो है आरंभिक मध्य काल माना जाता है और 7वीं से 18वीं शताब्दी तक की जो है कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों ने प्रादेशिक राज्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी थी। जहाँ भी अच्छा कृषि संबंधी गतिविधियाँ मौजूद रही है उनमें न सिर्फ लोगों की भूख को शांत किया है बल्कि इससे अधिक पैदावार भी उत्पन्न हुआ है जिसे बेकार धन कमाया जा सकता था। भूभाग और जल मार्ग से होने वाले व्यापार और व्यापारिक गतिविधियां ने भी राजस्व कमाने की बहुत महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किए हैं। उस समय के दौरान समाज में हम ऐसी शक्तिशाली वर्गों को उद्भव को जो है रेखांकित कर सकते हैं जो बढ़ती कृषि उत्पादों की बढ़ती का नियंत्रण करते थे। कई बार इस शक्तिशाली वर्ग के कुछ सदस्यों ने अपना अधिकार भी जताया और राजनीतिक शक्ति प्राप्त भी कर राजा बन गए और साम्राज्य की स्थापना भी किया। इसी ने भी राज्य की स्थापना की नींव भी रखी। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा बाबर के बारे में जो हम पिछले चैप्टर में किए थे। कहते हैं ये सारे जो थे अपने आप में इतने पावरफुल नहीं थे लेकिन कुछ कारणवश कुछ राजाओं की जो है गलती के कारण उन्होंने जो है अपना छोटे से सैनिक से बड़े सैनिक को हरा के जो है अपना राज्य की स्थापना कर बैठे। तो ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है और ज़रूरी भी है। कई बार बाहर से भी कुछ समूहों ने प्रवेश किया और यहाँ पर कई इलाकों को जीता और वहाँ का जो है प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लेकर बहुत शक्तिशाली स्थान ग्रहण किया। जैसे कि आपको पता है बाबर की स्टोरी है, ठीक है। बाबर ने जो है दूसरे देशों से आकर भारत में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और कहते हैं इसके वंशज जो है कई कई सालों तक जो है राज्य करते रहे और भारत को जो है अपना जो है नियंत्रण पैदा करते रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्षेत्रीय राजाओं ने बहुत काफ़ी यहाँ पर गलतियाँ किया जिसकी वजह से जो है दूसरे प्रादेशिक राजाओं थे उनको मौका मिल गया और उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में हर संभव कोशिश किया और वो कामयाबी के भी जो है चरम सीमा पर पहुँचे। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है
कहते ये सच है कि बड़ी संख्या में 13वीं सदी के पश्चात प्रादेशिक राज्य का उदय दिल्ली सल्तनत की अंदरूनी कमजोरी की वजह से ही हुआ था और इसी प्रकार मुगल शासन के पतन के पश्चात 18वीं सदी में महत्वपूर्ण प्रदेशों का उदय भी हुआ। परंतु इन सभी प्रदेशों का अपना निजी इतिहास था जो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों से पहले ही मौजूद था। उदाहरण के लिए बंगाल 8वीं और 9वीं सदी में पालों के अधीन और उसके बाद 12वीं सदी में सेनों के अधीन एक महत्वपूर्ण प्रादेशिक साम्राज्य बन गया था। तो ये आप समझ सकते हो कि किस प्रकार जो है प्रादेशिक ने भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अदा किया। यह 13वीं और 15वीं सदी के दौरान स्वतंत्र प्रदेश था और 18वीं सदी में भी यह बहुत ही शक्तिशाली प्रादेशिक साम्राज्य रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने अनेक विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों पर जो है शासन किया। इसलिए यह शायद याद रखना भी चाहिए कि प्रादेशिक राज्य वंश शक्ति ग्रहण करते रहे या कभी हराते रहे या उन्होंने अपनी भौगोलिक सीमाओं को भी बदला, परंतु प्रादेशिकता का अस्तित्व हमेशा मौजूद रहा है। यानी देखा जाए तो प्रादेशिकता हमेशा ही भारत में मौजूद था, क्योंकि आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि भारत के जो है दरारों से, यानी जो है आप ये कह सकते हो कि पंजाब के क्षेत्र में जो दरारें थे उस क्षेत्र से जो है प्रादेशिक ने बार बार भारत पे जो है आक्रमण किया और भारत को जो है खोखला भी किया। इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण जो है मोहम्मद गजनवी को ले सकते हो, जिसने भारत पे जो है 17 बार आक्रमण करके जो है यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब भी वह भारत में आता था यहाँ से जो है बहुत सारे धन दौलत लूट के ले जाता था और अपने एक गुलाम शासक को यहाँ पर छोड़ देता था जो यहाँ पर राज्य करता था। तो ये आप समझ सकते हो कि भारत जो है कई बार जो है विदेशी नीतियों का शिकार बना है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं राजनीतिक विशेषताएं जैसे प्रादेशिक शासकीय राजवंशों के अतिरिक्त प्रादेशिक की भी कुछ अन्य विशेषता भी थी जो इस प्रादेशिक राज्यों में विकसित और पल्लवी हुई और समय के साथ बदलती भी गई। प्रादेशिक की कुछ विशेषताएं हमें कुछ इस प्रकार जानने को मिलेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, राज्य के जो है उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन प्रादेशिक के बारे में कि क्या उनकी विशेषता थी, क्या उन्होंने भारत के लिए किया और क्या उनका हिंदुस्तान के लिए योगदान था, तो इसके विषय में जो है विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो यही आपके समक्ष आता है कि एक महत्वपूर्ण पक्ष है भाषा। देखिए पहली बात तो यहाँ पर साफ क्लियर हो गया कि भाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। किसी भी देश में राज्य करने के लिए जो है भाषा महत्वपूर्ण मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर उड़िया, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी आदि कई भाषा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जा रही थी उस समय, जिन्हें प्रादेशिक भाषा ही कहते हैं। यह भाषा आरंभिक, मध्य और मध्य युग में विकसित हुई और विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित रही। यद्यपि यह भाषा किसी न किसी रूप में इससे पहले भी अस्तित्व में थी, परंतु 11वीं और 12वीं सदी में ही मूलतः इस प्रादेशिक भाषा को सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग में लाया गया। साहित्य रचना और स्थानीय साहित्य की रचना इस भाषा में लिखे जाने लग गई। आपने देखा भी होगा कई जो थी हमारे साहित्य वो इन्हीं भाषाओं में लिखे जाने लगे। मध्य युग में प्रादेशिक भाषा के प्रयोग के साथ साथ दार्शनिक ग्रंथों में संस्कृति का प्रयोग भी होता ही रहा। यद्यपि जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के अधिकांश सरकारी दस्तावेज और कुछ प्रादेशिक राज्य के दस्तावेज फारसी में भी लिखे जाते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो पहले पॉइंट ने इसी बात को जो है प्रायोरिटी दिया, इम्पोर्टेंट दी कि भाषा जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और भाषा के रिगार्डिंग ही सभी साहित्यों का जो है निर्माण हुआ। तो ये पहला जो थी प्रादेशिक के लिए महत्वपूर्ण था। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या दर्शाता है। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत एक अन्य विशिष्ट है स्थानीय प्रादेशिक उपन्यास पद्धति और धार्मिक जुड़ाव। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ गया, भाषा के बाद धार्मिक जुड़ाव। कहते हैं धार्मिक जो लोग जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर दर्शाता है। कहते हैं जो एक अन्य विशेष और स्थानीय प्रादेशिक उपन्यास और पद्धति और धार्मिक जुड़ाव, उदाहरण के लिए उड़ीसा में जगन्नाथ और उपासना केवल उड़ीसा प्रदेश में ही सीमित थी और यह राज्य का पंथ और संप्रदाय बन भी गया और शासक ने भी इसे अपना लिया था, क्योंकि जिस राज्य में जो शासक करते थे उनको वहाँ के जो है धर्म रीति रिवाज को मानना एक स्वाभाविक बात था।
उनके लिए एक भव्य मंदिर भी बनवाया गया और हर वर्ष इसके साथ जुड़े उत्सव भी मनाए जाने लग गए। इतिहासकारों का कहना है कि जगन्नाथ एक जनजातीय देवता थे, यानी देखिए जगन्नाथ एक जनजातीय देवता थे जिनकी लोकप्रियता ने शासकों को इसे राज्य के पंथ और संप्रदाय के रूप में अपनाने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। अगले भाग में हम राज्य और धर्म के परस्पर संबंधों पर प्रकाश डालेंगे। कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक संप्रदाय और भक्ति धर्म विकसित हो गए। उदाहरण के लिए नामदेव, रैदास, तुकाराम, गुरु नानक प्रादेशिक राज्य में मौजूद थे, यानी इन्होंने जो है भक्ति धर्म की स्थापना किया और भक्ति धर्म में जो इन्होंने अपना उच्चम कोटि की जो है भक्ति प्रदर्शन किया। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जिसको आपको याद रखना चाहिए, कई बार जो है छोटे क्वेश्चनों में ये पूछे जा सकते हैं। कहते हैं धर्मों को भी अपनी पुरानी कथाएं, दंत कथाएं और परिभाषा तथा धार्मिक कर्म कांड होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, हर एक धर्म में आपको पुरानी कथाओं के रूप में अपने इष्ट के बारे में महत्ता को दर्शाता है और कई कई जगहों पर दंत कथाएं भी मौजूद होते हैं, तो कई जगह परिभाषाएं और धार्मिक कर्म कांड भी काफ़ी धर्म के रूप में जुड़ाते हैं, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ जुड़ाव जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या ये आप बात जानते हैं कि उत्तर भारत में शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जो अविवाहित माने जाते हैं, ये आपको भी पता होगा कि शिव और पार्वती के पुत्र जो है कार्तिकेय, गणेश भी है और कार्तिकेय हैं, तो कार्तिकों को जो है अविवाहित माने जाते हैं, जो धर्म हिंदू धर्म में बताई गई है। और तमिल क्षेत्र में उनकी 2 पत्नियां को दर्शाई गई है, जैसे देवानिया और वल्ली। आखिर ऐसा क्यों? तो ये काफ़ी विशिष्ट बात यहाँ रखती है कि धर्म सिर्फ जो है यहाँ पर बताई गई है। प्रत्येक क्षेत्र के अपने स्थानीय देवी देवताओं और विभिन्न मंदिर और मस्जिदों का वास्तुशिल्प था। दिलचस्प बात यह है कि इन प्रादेशिक विभिन्नताओं के बावजूद भी यहाँ हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट परंपराएं थी। वहीं प्रादेशिक परंपराओं में समानता भी थी अंततः, और कहते हैं बहुत जरूरी भी थी। अगर बात करें हम यहाँ संत और पुजारी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित हुए। उदाहरण के लिए सूफी संत गेसु दराज यानी 1321 से लेकर 1422 जो कि दिल्ली में स्थापित चिश्ती सिलसिले से संबंध रखते थे, और दिल्ली से दक्कन क्षेत्र को जो है दौलताबाद में जो है 1328 में तब स्थानांतरित हुए जब वे बच्चे थे। कहते हैं 7 वर्ष के बाद 1335 ईस्वी में वो दिल्ली वापस आ गए और 63 वर्ष तक यहाँ रहे। 63 वर्ष तक जो है यहाँ पर उन्होंने स्थान ग्रहण किया। 14वीं सदी के अंत में यानी 1398 में जब तुर्की आक्रमणकारी तैमूर ने मध्य एशिया के दिल्ली पर आक्रमण किया तो गोसु द्राज में स्वयं को जो है द्वारा दक्कन में स्थानांतरित कर लिया गया। तो ये सारी बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। यदि बात यहाँ पर हम करें तीसरी पॉइंट को, तो ये भी जो है इसकी विशेषताओं को लेके बहुत काफ़ी जिज्ञासा में लीन है। कहते हैं पहली बार में तो हमने ये जाना कि कहते हैं भाषा कितना महत्वपूर्ण था। दूसरे में हमने धर्म के विषय में विस्तार पर जानने की कोशिश किया, और तीसरे बात जो है प्रदेश राज्य के बारे में यही दर्शाता है कि एक दूसरे कटे हुए बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र नहीं थे, यानी पहले सारे एक ही क्षेत्र हुआ करते थे। राज्य में परंपरा धार्मिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त व्यापार और वाणिज्य तथा कारीगरों के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरण के जरिए परंपरा लेन देन जाल का बिछा हुआ था। यानी आप ये बात समझ गए होंगे कि तीसरी पॉइंट जो है यहाँ पर व्यापारिक के रूप में केंद्रित है, जो हर क्षेत्र में व्यापार हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली पॉइंट में ये थी, दूसरी पॉइंट में ये था, तीसरे पॉइंट में ये था। तो जो समझदार बच्चे होते हैं वो फटाक से नोट कर लेते हैं कि उस समय प्रादेशिक राज्यों में क्या विशेषताओं से बने हुए थे। तो ये आपकी समझदारी को दर्शाता है कि आप नोट करते हो कि नहीं करते हो। उदाहरण के लिए जो है 15वीं शताब्दी में रेशमी के बुनकर पठनकुलकारों के गुजरात क्षेत्र के विजयनगर राज्य में स्थानांतरित किया गया, और विजयनगर और वहनीवी साम्राज्य में अफ्रीकियों और ईरानियों का स्थानांतरण भी देखने में आया। यानी यहाँ पर देखा जाए तो व्यापारी तो हुई लेन देन तो हुआ ही हुआ, साथ में कई जो है जातियों का जो है स्थानांतरण भी देखने को मिला। इसके अंतर्गत अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो ये भी अपनी विशेषताओं के साथ
आपके समक्ष है। कहते हैं एक अन्य विशेषता बिहार, बंगाल, असम, मध्य भारत, राजस्थान व अन्य स्थानों पर प्रादेशिक कला शैलियों का स्थानीय और प्रादेशिक स्तर पर विकास होना है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रादेशिक विशिष्ट पहचान बनी और इसमें जो है बदलाव आते गए जो प्राचीन काल में अस्तित्व में नहीं थे। विविध प्रादेशिक राजवंशों ने कला, संस्कृति, साहित्य और वास्तुशिल्प को जो है संरक्षण प्रदान किया गया। इस प्रकार अनेक प्रादेशिक राज्यों के अस्तित्व से किसी प्रकार की अव्यवस्था और भ्रम पैदा नहीं हुआ। इन राज्यों की आपस में लड़ाई भी हुई, परंतु उन्होंने अपने अपने प्रदेशों को स्थिरता भी प्रदान की, जैसा कि ऊपर बताया भी गया है। उनकी अपनी एक निजी जीवंत संस्कृति थी। प्रादेशिक राज्य ने वास्तुशिल्प और राजनीति संस्कृति में एक दूसरे को बहुत ही जो है प्रभावित किया। यानी तो देखा जाए तो तीसरी बात जो है वास्तुकला, राजनीति, संस्कृति के जो काफ़ी प्रभावित किया, इन बातों पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। उदाहरण के लिए विजयनगर के प्राचीन शासक खुद को हिंदू प्रभु राणा कहते थे, जिसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। यहाँ सुल्तान शब्द दिल्ली सल्तनत से लिया गया है। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत की जो है तादारी प्रणाली का प्रभाव विजयनगर और वैनमी साम्राज्य को प्रशासनिक पद्धति पे भी पड़ा। कहते हैं प्रादेशिक राज्यों और दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे साम्राज्य में क्या अंतर है। ऊपर लिखित कई किसी जो है विशेष में से विशेष भाषा और संस्कृति के अतिरिक्त इन सभी राज्यों के राजनीतिक और जो है सैनिक क्षमताओं को भी प्रादेशिक सीमाओं द्वारा सीमित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों हमारा पहला टॉपिक जो था बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो कि ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए, कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। पसंद आया तभी करना, और पसंद अच्छा आया तो ये दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान सेंटर को हेल्प भी करना है। इसलिए जो है इसको लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना नहीं भूलना, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, नहीं तो जो है आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा। अगर बाद में आप अगर इसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो शायद आपको तिरपान स्टडी सेंटर के जगह पर उन सभी वीडियो मिलेंगे जो पहले से जो है यूट्यूब पे डले हुए हैं। अगर आपको तिरपान सेंटर को ही देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हित में होगा।